So write down the topic mechanism. In this mechanism, we will learn that it will be clear that how nerve impulse and how action potential are transmitted from one neuron to next neuron or whatever their target organ or in the synapse. कहाँ पे साइनेप्स में कैसे ट्रेवल करेगा ये हम लोग जानेंगे. क्लियर है क्या? सो इसमें मैंने बताया था कि इन दिस साइनेप्स वी हैव थ्री कंपोनेंट. First one is the presynaptic membrane, then we have synaptic cleft, then we have postsynaptic membrane. In this postsynaptic membrane, we have receptors where it will receive the neurotransmitter from the synaptic cleft. Clear है? And synaptic cleft में वो neurotransmitter कहाँ से आएगा? As we know, in the axon terminal where there is synaptic vesicles which contains some chemical, and those chemicals are neurotransmitter, for example acetylcholine or dopamine. क्लियर है? ऑल दीज रिसेप्टर्स. और ये कैसे रिलीज होगा इसके लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि देयर इज अ रोल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैल्शियम. किसका रोल होता है? कैल्शियम का. क्लियर है क्या? whenever the action potential, when the AP का मतलब not arithmetic progression, it is action potential. When the action potential develops in प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि वो एक्सॉन की तरफ से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है क्या? प्री synaptic membrane via which part? Hello, via synaptic cleft क्या? Hello, synaptic cleft, and it binds to specific receptor. Every neurotransmitter have a specific receptors which are present in the postsynaptic membrane. Is it clear to all of you? Hello. Yes, sir. And binds to specific receptor. Specific receptors. Clear है? सो आफ्टर मैंने क्या बोला, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी कहां पर? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और फिर वाया साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये ट्रेवल आगे करेगा. क्लियर है? एंड देन इट विल बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. जैसे ही ये वाली चीज आ जाएगी तब क्या होगा? बताइए. न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होगा. सबने लिख लिया क्या इसको? यस सर. नहीं सर, एक मिनट रुक जाओ, कुछ में चेंज करना है. When action potential develop in presynaptic membrane via synaptic cleft. अच्छा, इसके ऊपर जगह है क्या? इसके ऊपर जगह है? हेलो, एक लाइन है सर. एक लाइन से नहीं चलेगा ना. इसको अपना ऐसे कट करना है, ठीक है? मतलब यहां से कट करना है, वाया से. ठीक है? When action potential develop in presynaptic membrane, then it becomes permeable to calcium ion. क्लियर? अपने आप नहीं होगा, जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी तभी ये काम हो पाएगा. बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो,
Yes, हाँ sir. सर. Then these calcium ions will enter the pre-synaptic membrane and the neurotransmitter vesicles में क्या हो जाएगा, बस्टिंग हो जाएगी और वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएगा. क्लियर है क्या? Then what will happen? Calcium ions in synaptic pre-synaptic membrane and neurotransmitter vesicles burst out due to the stimulation by calcium ion. Clear? Stimulation by calcium ion. Clear है क्या? And then what will happen? Hello? They release neurotransmitter into the synaptic cleft. Clear है क्या? हाँ sir. They release neurotransmitter in the synaptic cleft. In synaptic cleft. यहां तक किसी को दिक्कत है? So again I'm repeating it. Whenever the action potential will develop in the presynaptic membrane, जो कि पहले वाला न्यूरॉन्स का पार्ट है, जैसे वो आती है तो कैल्शियम आयन जो अवेलेबल होता है वहां पर उस सेल और सेल के फ्लूइड में, उसके लिए क्या होती है, मतलब कि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं. बोलते हैं ना, दरवाजा खुला रखना, आएंगे तेरी डोली. आगे मुझे नहीं पता, ठीक है ना. परमेबल कैल्शियम आयंस, then what will happen, these calcium ions will enter the presynaptic membrane. क्लियर? इनके अंदर आने से क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन वगैरह या डोपामाइन के जो वेसिकल्स होगा वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिनकी वजह से इनका केमिकल बाहर रिलीज हो जाएगा. क्लियर है क्या? as getting the stimulation from calcium ions and they will release the neurotransmitter in which part of the synapse? Synaptic cleft. Synaptic cleft. यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? Then what will Yes. happen? Then what will happen कि ये जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है ये फिर कहां पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टिक वाया साइनेप्टिक क्लेफ्ट. कहां पहुंचेगा ये? Post synaptic ना. So these neurotransmitter reaches the post, लिखिए बैठ के मत देखिए, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाया साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्लियर? जो वहां पे लिखा था वो यहाँ का पॉइंट था, ठीक है ना. वाया reaches the post synaptic membrane via synaptic cleft. बात समझ में आ रही है क्या? And then it will bind to the specific receptor, then binds to specific receptors which are present in the presynaptic membrane. आराम से, ठीक है ना. अरे बोलो तो, कहाँ किससे बाइंड करेगा? स्पेसिफिक रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन ना. Post synaptic. Post synaptic.
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स पे होता है क्या? किस पे होता है? डेंड्राइट्स पे। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था ना। हाँ टीलोडेंड्रिया में होगा प्री, और वो कहाँ पर होगा? पोस्ट किस में होगा? डेंड्रॉन्स। उसी का जो टीलोडेंड्रिया। उसी का जो टीलोडेंड्रिया तो उसके एंडिंग पार्ट है न्यूरॉन्स के, आउटर। वहां से तो निकलेगा ये, ठीक है ना। अब जो आपका अगला वाला है पोस्ट साइनेप्टिक, वो किस में होगा? नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर डेंड्राइट। मसल। टारगेट ऑर्गन है ना, जो हाँ। इससे बाइंड करेगा। क्लियर है? जैसे मसल्स है तो मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनेगा, तो मसल्स में पार्ट पाया जाएगा। क्लियर है क्या? स्पेसिफिक रिसेप्टर। सर हाँ सर, सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डाउट था, बोलिए। तो एएफटी क्या होता है? उसका एक क्वेश्चन मैंने फुल फॉर्म दिया से शेयर किया था मैंने आप लोगों को, एएफटी नहीं लिखा था। ग्रुप में देखा था आप लोगों ने क्या? क्वेश्चन में पूछा गया था ना एएफटी के बारे में। पता नहीं, आपने रीजन नहीं बताया। अच्छा चलिए मैं उसको ठीक है बताता सर, मैं चेक करती हूँ। सर एक्चुअली वो स्कूल वाले टीचर्स ने दिए थे क्वेश्चंस, तो उसमें एएफटी के बारे में लिखा हुआ। हूँ। ART होगा ना? नहीं, एएफटी था भाई, ठीक है, एआरटी ठीक तो। देखता हूँ। Cleft and binds to specific receptors which are present in the post synaptic membrane. क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. हाँ सर। आफ्टर बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, देखो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हर मेडिसिन के लिए अपना अपने बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं ना। ऐसा नहीं कि किसी कोई भी दवाई खा ली तो किसी में भी काम कर जाएगा। हर दवाई के लिए अपना अलग अलग, हर केमिकल्स के अपना अलग अलग रिसेप्टर होता है। उसी से बाइंड करने के बाद तब जाके इसका हमें इफेक्ट मिलता है। क्लियर है क्या? जैसे ही उससे बाइंड करता है, बाइंडिंग of this, what will happen? Guess what will happen? Hello? Binding of this neurotransmitter, मैसेज सेंड होगा ना? मैसेज सेंड होगा। क्या बोल रहे हैं? मैसेज सेंड होगा बगैर बगैर ओके दबा के? वो न्यूरोट्रांसमीटर वो करेगा ना। देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या बोला? बाइंडिंग ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल, जो आयन चैनल्स वहां प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे क्या? ओपन्स ऑफ द आयन चैनल। क्लियर? हेलो? हाँ Yes, सर। sir. अब देख क्यों क्यों खुलेगा। देख, जैसे अगर ये खुलेगा नहीं तो अगले वाले में जो इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल, वो कैसे उनके पास भी डेवलप होगी? अगले वाले पास भी तो डेवलप होना पड़ेगा ना। जब तक खुद आयन चैनल खुलेगा नहीं तो कैसे हो पाएगा? बात समझे क्या? हाँ, ओपन द आयन चैनल्स, जिनकी वजह से विच अलाउइंग द entry of ions which can generate a new potential, क्लियर है क्या? ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? हाँ मैडम जी, गुड इवनिंग। तुमसे कह रहा हूँ, जेनस से कह रहा हूँ। कब तो ज्वाइन की क्लास? 4:15. अभी मैं आपका आवाज सुना। तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास जैसे न्यू पोटेंशियल आएगा
और ये जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। क्लियर है? और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगी, यहाँ पर जो मैंने क्या बोला, देख, बाइंडिंग ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर opens up the channels, ion channels, allowing the entry of ions which can generate a new potential. और ये जो न्यू पोटेंशियल है ना, these new potential may be inhibitory और excitatory. Obviously ये इसके लिए वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसी के बेस पे काम करेगा ना। अब मान लो वो वाला था आपके पास एक्साइटेटरी, तो ये वाला जब पोटेंशियल बनेगा ये कैसा बनेगा, इनहिबिटरी बनेगा, एक्साइटेटरी बनेगा, कैसा बनेगा, एक्साइटेटरी। तो जैसा न्यूरोट्रांसमीटर वैसा न्यू पोटेंशियल बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझा। दिस पोटेंशियल या वी कैन से द इनहिबिटर का रोल कहाँ पे आएगा? आगे बढ़ने दोगे? हाँ। आगे बढ़ते हैं, जब आगे हम निकल जाएंगे तब बोलना कि क्या रोल होता है, ठीक है ना? डाउट रहेगा तो फिर बोल देना, नहीं रहेगा तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेना, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, दिस पोटेंशियल कौन सा जो यहाँ पे डेवलप होगा, दिस पोटेंशियल may be excitatory, ठीक है क्या, excitatory. In short we can call it as, क्या बोलेंगे इसको, एस नहीं पी, EPSP. क्लियर है क्या? दूसरा वाला क्या होगा, इनहिबिटरी, यस और नो, इनहिबिटरी. इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, IP, क्या बोलेंगे, IPSP. इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मुझे कौन बताएगा? हेलो, कोई है जो, इनहिबिटरी पोटेंशियल हाँ, पोटेंशियल समझा सोमेटोट्रोपिक, समझा। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, क्या बोला? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एनीवन? वही होगा सर, ऊपर वाला प्री होगा उसमें, पक्का ना? साइनेप्टिक। हाँ ठीक है ना, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. क्लियर है क्या? सर ऊपर वाला पोस्ट ही है ना? पोस्ट है वो इधर, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ही है ना? हाँ ना, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. क्लियर है क्या? क्या ये सब बात समझ में आई आप लोगों को? अगर इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करें ESP के बारे में, EPSP नॉट ESP, मतलब जो एक्साइटेटरी वाला होगा, इन शॉर्ट मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. ठीक है ना? दिस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या ले सकता हूं, बताइए? ACH. ACH का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिटाइलकोलिन. इट इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर. क्लियर है क्या? एक्साइटेटरी में मतलब जो कि काम करवाएगा, ठीक है ना, रोकने, अपोज करने वाले नहीं, फेवर करने वाला, मेन न्यूरो ट्रांसमीटर. which develop due to opening of सोडियम वाला हम लोग चैनल पढ़े थे क्या? हेलो,
सोडियम गेटेड चैनल्स, सोडियम गेटेड चैनल्स। क्लियर है क्या? हाँ जी, यस सर। आगे बढ़ूं क्या? सर एक मिनट। सर नहीं हुआ था सर। हाँ सर। ठीक है ना, आगे बढ़ूं मैं क्या? और वहां पर जो साइनेटिक, वहां पर जो आपके पास प्री और पोस्ट साइनेटिक क्लेफ्ट जो बचा हुआ है, बना वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या है, एसिटाइल कोलिन है। अब बेसिकली जो मैंने आई थिंक मैंने से पहले बताया हो कि जो एसिटाइल कोलिन ये दो कंपोनेंट से बनी होती है, कोलिन और एसीटेट से। बताया था क्या? इसके लिए एक एंजाइम होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोलिनेस्टरेज। क्या बोलते हैं? कॉलिन स्ट्रेज या कॉलिन स्ट्रेज बोल सकते हैं आप। बेसिकली ये क्या है, कॉलिन स्ट्रेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिकम्पोज करता है, दो पार्ट में अलग अलग बांटता है। कैसे, किसमें? कॉलिन और एसीटेट में इसको डिकम्पोज करता है, जिनकी वजह से ये अपना इफेक्ट दिखा पाता है। क्लियर है क्या? हाँ सुजल, क्या बात, कोई खास बात है क्या? नहीं सर, क्या हो, बताओ, समझ में नहीं आ रहा है? जैसे समझा। फिर क्या के लिए मुस्कुरा रहा है? बे बात का मुस्कुराना मतलब कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। वो आ गए अभी हंसी क्या, हम्म। आ गए मुझे। सो वी हैव द एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोला मैंने एंजाइम का नाम? कॉलिन स्ट्रेज। और हाँ सर क्लिक। कॉलिन स्ट्रेज या कॉलिन स्ट्रेज बोल सकते हैं। कॉलिन से आया, एसिटाइल कोलिन से आया, कॉलिन कॉलिन स्ट्रेज एक एंजाइम है। क्या है? और ये कब काम करेगा? जब एसिटाइल कोलिन जब वहां से आगे बढ़ चुका होगा, तब ये एंजाइम आएगा और इसको दो अलग अलग पार्ट में काम करके इसका अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है क्या? मतलब कोलिन अब कोलिन को अलग कर देगा और एसीटेट को अलग कर देगा। क्लियर है क्या? हेलो? हाँ सर। which decomposes which decomposes ACH into, बोलिए, कोलिन एसिटेट एंड कोलिन। कोलिन एंड एसीटेट। क्लियर? हाँ सुजल, क्या हो रहा है? क्लियर है सर। कुछ हो रहा है क्या उधर? मम्मी है पीछे। अगला लिखिए, अगर ये इनहिबिटरी हुआ, अगर ये न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर
एग्जाम्पल के तौर पर Dopamine. गाबा। गाबा कहाँ है बाबा के पास? अरे गाबा कहाँ है? ऐसा नहीं पता? अरे लास्ट टाइम तो बताया था गाबा कहाँ, कौन तो बताया था कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ बताया तो था। हेलो, इसका आप लोग फुल फॉर्म कहीं लिख लीजिएगा। पहले मुझे इस पॉइंट को कंप्लीट करने दीजिए। पहले वाला क्या था आपके पास? मैंने पहले वाला क्या बोला था? एसिटाइल कोलिन बोला था ना, दैट इज द एक्साइटेटरी। ये वाला गाबा क्या है? इनहिबिटरी, जो कि इनहिबिट करेगा, मतलब फर्दर कंडक्शन को रोक देगा। क्लियर है क्या? हेलो, दिस गाबा बाइंड्स विथ, ये भी तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। हेलो, बाइंड्स विथ प्री और पोस्ट? हेलो, पोस्ट। हाँ पोस्ट, क्योंकि सारा का सारा रिसेप्टर्स वहीं पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिनकी वजह से क्या होगा? टू ओपन द सीएल, जैसे जैसे अपने पास क्या था, सोडियम के गेटेड चैनल्स थे, वैसे क्लोरीन के क्या होते हैं? गेटेड चैनल्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या आएगा? सोडियम। पहले वाले केस में था सोडियम आ रहा था, ये वाले केस में क्या होगा? क्लोरीन की एंट्री होगी। ठीक है ना? ओपन द क्लोरीन गेटेड चैनल्स, क्लोरीन गेटेड चैनल्स, एंड जिनकी वजह से क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन क्या होगा? क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन पढ़े थे क्या हम लोग? अरे हाइपर हाँ, पोलराइजेशन पढ़े थे, क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन? एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो चैनल हाँ, इफेक्ट ज्यादा दिखाता है कम दिखाता है? ज्यादा। Dada. मतलब ऐसे में काम होगा या काम रुकेगा? इफेक्टिव रुके। होगा। क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा? नहीं सर, वो रुके। रुकेगा। काम मतलब को इनहिबिटरी है तो क्या करेगा? उसको रोकेगा ना। रोकेगा। हाँ, तो रुकेगा। जो ये जो नया वाला जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा, नाउ द पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? जो मैंने वहां पे शॉर्ट में लिखा था, क्या बोलेंगे इसको बताइए? इनहिबिटरी IPSP। इनहिब, अरे क्या लिखा मैंने? इनहिबिटरी पोस्ट समर साइनेप्टिक पोटेंशियल। Yes, sir. इतना देर से रिस्पॉन्स, IPSP। हाँ जी, एंड जिनकी वजह से क्या होगा? फर्दर कंडक्शन को ब्लॉक कर देगा या फिर अलाउ करेगा? ब्लॉक करेगा। लॉक करेगा। पक्का ना? इसीलिए तो नाम है इनहिबिटरी। क्या नाम है? इनहिबिटरी। एंड फर्दर कंडक्शन इज ब्लॉक्ड। और तभी तो कोई भी काम हो, चाहे कोई सा भी काम हो, ठीक है ना, चाहे इरेक्शन से लेकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले लो या कोई सा भी फंक्शन ले लो, हर जगह यही काम आएगा। क्लियर है क्या? अब वहां पर कैसे आएगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करें किसी भी फंक्शन के लिए ना, वहां पर बॉडी अपनी सेफ्टी देखती है। ठीक है ना? हमारा सोच वहां पर काम नहीं करता। ठीक है? बॉडी अपनी सेफ्टी देखती है, इसलिए उसको दिमाग में, बॉडी में दिमाग वगैरह, ब्रेन वगैरह सेट किया गया है। इंसान की बस में चले तो फिर पता नहीं वो अपना जो उसकी हरकत है वो कभी खत्म करे ही ना। ठीक है ना? इसलिए ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। क्लियर? कहीं पर ये गाबा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। हेलो,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बात समझ में आई क्या? सर आप ये पूरा मैकेनिज्म बस समरी टाइप बता दोगे ना? अभी पहले इसका फुल फॉर्म लेके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्लोरीन गेटेड चैनल्स कहाँ पे थे? हाँ, क्लोरीन वाले जहाँ चैनल्स पर सोडियम थे ना वहीं पर क्लोरीन भी होती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे सोडियम की बात क्यों किया था? क्योंकि हमें वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना था, ठीक है। हाँ क्योंकि देख, कुछ तो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वीजीसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नॉर्मल बोलते हैं जो कि डिफरेंट के थ्रू मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करता है। और कुछ इनहिबिटरी और एक्साइटरी, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइनेप्स में। साइनैप्स। साइनेप्स तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। तो बाइंड हो क्लोरीन जाने, गेटेड कहाँ पे है सर? ये साइनेप्स मिलता है जो आपने था ना वापस रिसेप्टर्स वगैरह वहीं पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ समझा। बाकी सब पढ़ेंगे आप लोग, जैसे बड़े होते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सब कुछ मैं अगर मैं ही पढ़ा दूं फिर आप लोग क्या पढ़ोगे? हाँ समर्थ, should I proceed? यस Yes, सर। sir. गावा का फुल फॉर्म लिख लो। गाबा, बाबा नहीं, ठीक है ना, गाबा। इट इज और गाम। आज आप आलम सर से सिलेबस पूछ लो क्या कमिंग एग्जाम का? गावा मीन्स क्या है आपके पास? क्या होगी? गामा, बोलिए। अमीनो। माइनो ब्यूटेन एसिड। पता है तो क्या पूछा रे? मैंने कब पूछा? फिर किसने पूछा? ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर है क्या? अगर इनके अगर थोड़ा कुछ खास बात के बारे में हम लोग बात करें, खासियत क्या होती है कि इट इज द predominant inhibitory न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला मैंने? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर in the mammalian nervous system, in the mammalian nervous system। और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक। नर्वस सिस्टम का लेक्चर कौन सा चल रहा है? ये 7th। बेवकूफ, पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। आपने एक लेक्चर तो पढ़ा ही नहीं था नर्वस सिस्टम, क्यों नहीं पढ़ाया था? आपने 5 ही पकड़ा था। नहीं ना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? जो टाइप्स हो अपने पास साइनेप्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ साइनेप्स, उनके बीच में डिफरेंस। क्लियर? इधर लिखिए, यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, देन फिर केमिकल। अच्छा, किसी ने पूछा था समरी टाइप का ना। अगर इसके हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करें ना,
बेसिकली जैसे ही आपके पास क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, वो कहां तक पहुंच चुका है, एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच चुका है। क्लियर है? व्हेन द एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे वहां तक पहुंचेगी, देन क्या होगा, इनके आने से ही, इनके जैसे बोलते हैं ना, देख देख के कुछ होने लगता है। अब कुछ देखने से, कुछ भी देखने से, ठीक है ना, मैं उसको कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, देखने से कुछ भी होने लगता है, तो इट बिकम्स परमेबल फॉर कैल्शियम आयंस। क्लियर है क्या? हाँ तो रतिका, it is permeable for calcium ions. These calcium ions will enter the presynaptic membrane, जिनकी वजह से क्या होगा, जो वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट थे, हम लोगों ने पढ़ा, डायग्राम में पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, वो फटने लगते हैं। फटने का मतलब अपना केमिकल, अपने कंटेंट को रिलीज आउट करते हैं, मतलब बाहर रिलीज करते हैं। क्लियर है क्या? ड्यू टू द स्टिमुलेशन बाय कैल्शियम आयन, इनकी आने की वजह से। क्लियर है क्या? देन दे रिलीज दिस न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो आपके पास क्या है, उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को ट्रेवल करते हैं, अब ये क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आगे ट्रेवल करेगा। इनके ट्रेवल करने से फिर ये बाइंड करता है, हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अपना क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। इसे मैंने क्या लिखा है कि दिस न्यूरोट्रांसमीटर रीचेस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब इसको ट्रेवल करते हुए बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? Yes, sir. Then what will happen? It binding of neurotransmitter in the post-synaptic membrane, it open up the channels allowing the entry of ions which can generate new potential. वो भी कहां पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। क्लियर है क्या? यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ये दो टाइप का होगा, डिपेंड करेगा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वहां से निकला था। क्लियर है? इट में भी एक्साइटेटरी ईपीएसपी और इनहिबिटरी आईपीएसपी। क्लियर है? मतलब यह हुआ, ईपीएसपी का मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है ना? आप लोग भूल जाते हो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। देन देयर इज अ, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी एक्साइटरी होगा, उसमें से मेन कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसीएच। It is a main neurotransmitter which will develop due to the opening of sodium gated channel which are present in the postsynaptic membrane in the synapse. Clear? Yes, समझ में आया? Then क्या होगा, जब वो बाइंड करेगा तो एक एंजाइम होता है क्या, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, जो कि क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को डिकम्पोज करता है कोलिन और एसीटेट में, तभी ये अपना काम दिखा पाता है। क्लियर है? ये तो एक्साइटेटरी वाला हो गया। दूसरा वाला क्या होता है, इनहिबिटरी, मींस इफ द न्यूरो इनहिबिटेड ट्रांसमीटर गाबा बाइंड्स विद पोस्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे क्या हो जाए, गाबा हो जाए, एज इट इज सोडियम के बजाय क्लोरीन की गेटेड चैनल्स में क्या होगी, ओपनिंग होगी, जिनकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। और जैसे हाइपर पोलराइजेशन होगा, ये फिर क्या कहेगा, ये जो नया पोटेंशियल है, ये फर्दर उसके कंडक्शन को ब्लॉक कर दे, जो भी काम, जो भी प्रोसेस हो रहा था। क्लियर है क्या? मैं एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, इरेक्शन, मतलब कि सेक्सुअल एरोस जो होता है, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब कुछ ब्रेन से होता है। अगर ऐसा कंटिन्यूसली अगर इस तरीके से एक्टिविटी होता रहे तो बॉडी में कुछ एनर्जी बचेगी नहीं, आगे ना। तो इसको व्हाट आई कैन से कवर अप करने के लिए बॉडी के अंदर से क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होती है, जो कि उसको थोड़ा बहुत क्या लगता है, ड्रोजी लगता है, और थोड़ा नींद आने लगती है, और धीरे धीरे आफ्टर ओनली देयर इज एवरेज टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होता है, फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। मतलब इरेक्टेड था, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते होते, फ्लेसिड होते होते वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि पहले तो बाइंड तो हो रहा था, पहले एक्साइटेटरी था, तभी तो इरेक्शन हुआ था। अब क्या है, इनहिबिटरी है, तो उसको बाइंड करने से रोक देगा, जिनकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, वो काम कंडक्शन कर नहीं पाएगा, जिनकी वजह से वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये बॉडी के बेटरमेंट के लिए किया गया है, और ये सिस्टम अपने बॉडी में डेवलप होती है। क्लियर है क्या? yes, sir. बात समझ में सबको आ गई? आते हैं हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ साइनप्स में, इलेक्ट्रिकल साइनप्स और केमिकल साइनप्स। एक तरफ लिखते हैं हम लोग क्या, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल में फास्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में फास्ट होगा, केमिकल में स्लो, Slow. रिलेटिवली स्लो बोल सकते
स्लो मतलब स्लो, ठीक है ना, रिलेटिवली स्लो बोला, कैसे स्लो बोला। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा इलेक्ट्रिकल। साइनेप्टिक क्लेफ्ट अराउंड 0.2 नैनोमीटर। आई थिंक नैनोमीटर का वैल्यू मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करूं 10⁻⁹ तो मुझे लगा 10⁹ हाँ, इसमें कितना होता है, 20 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। अप्रोक्स कितना टाइम्स है? अप्रोक्स 100 टाइम्स। ये 10 टाइम्स बोल रहा है बेवकूफ आदमी। कौन बोला था रे? बोला हाँ बोला था। देखो ना, मैं पैराबोला बना दूंगा, ठीक है ना। हाइपर बोला। बोला पैराबोला। न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा? अरे बोलो तो। केमिकल वाले में। इसमें absent होगी, तो होता ही कहाँ से होगी, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगी। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो क्या? सर लिखा नहीं है सर, एक तुम लोग से मेरा टाइम बढ़ाते हो। occurrence in body, ये रेयर आएगा इलेक्ट्रिकल। बता दिया तो मालूम होगा ही, रेयर इन आवर बॉडी, ठीक है, पहले बोलते हैं ना तब मालूम चलता है। हाँ, आपने एंटिटी, कब बताया? वाओ, जो कितने हाँ सर। ऐशान फरामत लोग हैं लोग, मोस्ट कॉमन। कैसे हैं? दिस इज मोस्ट कॉमन फाउंड इन आवर बॉडी। इसका 5वां पॉइंट लिखिए, साइनेप्टिक डिले किसमें होगा? केमिकल में। इसमें absent होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर? 6th पॉइंट लिखेगा, ब्लॉकिंग, कि कौन ब्लॉक कर सकते हैं कौन ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्लॉक घर वाला ब्लॉक नहीं, ठीक है ना। इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ब्लॉकिंग में कैनॉट बी कंट्रोल्ड। एक बार हो गया सो हो गया ना। ये वाला क्या है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, क्या है, कंट्रोल्ड बाय कौन, मेरे मेरे द्वारा, इनहिबिटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। तो इलेक्ट्रिकल कभी ब्लॉक मतलब वो चलते रहेगा? इसलिए तो रेयर इन आवर बॉडी है। पर है ना सर वो भी। है तो कोई चीज है, जैसे कि अपने अपने में कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यू चलती रहती है ना, जनरली सब कुछ रेस्ट में चला जाता है, लेकिन कुछ पार्ट चलते रहते हैं ना, तो वहां के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। अरे आगे ना, न्यूरो ट्रांसमीटर, जल्दी करिए, आप ब्रेन के बारे में पढ़ना है, बहुत हो गया सर, ड्रामा बहुत खेले तुम लोग ना। ये क्या होगी, आगे बढ़ो क्या? यस सर। सर बोर्ड लेक्चर में बहुत जल्दी हो गया था ना क्या? ये चैप्टर। नहीं ना, 7 लेक्चर पढ़े, उसमें कितना पढ़े थे, चलो कोई नहीं, इतना लिखा क्या आपने। नेक्स्ट लिखिए, फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, अगर फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा रितिका, बताइए।
अगर कंडक्शन बात करें तो यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शन। किसके तरह, जाइलम की तरह, फ्लोएम की तरह? जाइलम की तरफ। सोच लो सोच लो सोच लो। तो जाइलम, वो म्यूट हो गया सर बोलते वक्त। नर्व इम्पल्स इज यूनि डायरेक्शनल। क्लियर है क्या आर्यन? यस सर। क्लास में एक्टिव रहना यार। सर मम्मी आ गई थी सर। मम्मी का, मम्मी को भी बैठा तो मम्मी पढ़ लेगी, क्या दिक्कत है? मम्मी बोली। हाँ, इसके पास एक एक लॉ होता है, एक लॉ होता है, ऑल और नन। इसमें कुछ सेलेक्टिवनेस नहीं होती है, समझ में आ रहा है क्या? इसमें कुछ सेलेक्टिव, चाहे तो सबका या किसी का नहीं। समझ में आ रहा है क्या? So we can write it as it follow all और none लो। कैसा लो? नन लो। लेने के लिए नहीं कह रहा है, ये लो की बात कर रहे हैं ना। हाँ दिनात, कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, ये लो की बात कर रहा है, ठीक है ना? ऑल और नन, क्लियर है? मतलब किसी खास इसके लिए इम्पल्स के नहीं हम ये वाला कंडक्शन, ये वाला एक्शन पोटेंशियल लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे। इसी को बोलते हैं ना सिलेक्टिवनेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी आएगा अपना इफेक्ट दिखाएगा ये, चाहे तो आएगा ही, नहीं लेगा या तो नहीं लेगा। क्लियर है क्या? सिर्फ लिखने में रहोगे या बोलोगे भी? क्लियर है। दिमाग से इरेज कर, सब कुछ इरेज कर दिया क्या? इसमें लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स is always same, is always same, always be same, irrespective of strength. Clear? Strength of stimulus. स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कैसा भी हो उस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो सेम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर है क्या? एंड इट शुड बी अबव द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये याद है क्या आप लोगों को? हाँ। उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन Threshold एटॉमिक frequency. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना, वैसे यहाँ पर है थ्रेशोल्ड अबव थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या मुलस? स्टिमुलस। इतना लिखा गया। यस सर। अच्छा ये बताइए कितना पॉइंट था वो? तीसरा, दूसरा है ना? तीसरा पॉइंट। एक बात मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई न्यूरॉन है, क्या है, कोई नर्व फाइबर है, कोई नर्व सेल है, कोई न्यूरॉन है, अगर डायमीटर ज्यादा होगा या डायमीटर कम, तो इनका कंडक्शन में इसका जो स्पीड होगा वो किसमें ज्यादा होगा? इसका डायमीटर ज्यादा होगा या डायमीटर कम होगा? कम होगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। क्या इनवर्सली होगा? इनवर्सली ना, हाथ है ना, अपने अपने को थप्पड़ लगाओ। जितना ज्यादा उनके पास क्या होगी, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा, लेंथ। उतने ज्यादा बाइंड करेगा ना वहां पे रिसेप्टर्स पे। हेलो, नहीं समझ में आ? तेरे को आ रहा है? तेरा शक्ल कह रहा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, नहीं समझा ना? सर वो मतलब अगर डायमीटर लेस होगा तो मतलब इजीली पास कर सकता है ना इम्पल्स।
छोटा होगा तो उसका अच्छा, रास्ता अगर कम होगा तो Width. हम इजीली पास कर पाएंगे। नहीं मतलब विड्थ अगर उसका छोटा होगा तो वो जल्दी पास करेगा, ऐसा लगा मुझे। नहीं, मान लो ये एक रास्ता है ना, नहीं सर, वो डायरेक्टली होगा, समझा? जैसे हार्ट में वो वैसे उसमें ब्लॉकेज होता है तो। बस तुम समझदार तो हो, समझदार तो हो। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है क्या? एक चौथा पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको आप इस तरह लेके लिख लीजिएगा कि द वेलोसिटी ऑफ, समझ में आएगा ना वेलोसिटी का मतलब? वेलोसिटी, मैं इतना पॉइंट लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय, किसका वेलोसिटी? मेरा है क्या, या ऑब्जेक्ट है, या बॉल का, या किसका? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का ना, उसकी वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय, पहला पॉइंट, फिजिकल फैक्टर। क्लियर है क्या? केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। क्लियर है क्या? फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर सच एज बताइए क्या क्या होगा? प्रेशर, यस और नो? कोल्ड, हाँ जी, हीट, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। बात समझ में आ रही है क्या? Okay. लिखा क्या इतना? हाँ सर। गोल्डन की पॉइंट्स बना के कुछ पॉइंट लिख लीजिए, गोल्डन की पॉइंट्स। इन शॉर्ट वी कैन से GKP। ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने बात किया था, जब डीपोलराइजेशन हुआ था तो सोडियम अंदर आया था या बाहर गया था? हेलो, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या हुआ था? सोडियम अंदर आया था। डीपोलराइजेशन, तो क्लोरोफॉर्म और ईथर की वजह से कैसे होगा चेंजेस, तो आप बता सकते हैं? कैसे होगा? आपने कभी वो सुना है क्या कि किसी को कुछ सुना दिया तो वो हाँ, बेहोश हो गया? जैसे ऑपरेशंस में क्लोरोफॉर्म देते हैं। हाँ, लोगों को बेहोश कराया जाता है, तो वहां पर भी इफेक्ट पड़ता है ना कुछ? अच्छा, जो कभी खास तौर से कभी दांत में इंजेक्शन लगा है आपका? लगा है। हाँ, मालूम, फिर वहां पे जब कोई दांत अगर निकाला हो तो तुम्हारा दांत खराब है? छी, गंदी बच्चे तुम। तो मैंने क्या बोला कि वहां ताकि उनका इफेक्ट ना हो, ताकि उसको क्या कर देता है, मतलब कि इफेक्ट लेस कर देता है, मुझे पता नहीं चलता है। काट दो, चीर दो, हथौड़ा मारो, लोहा कुछ भी मारो, क्यों? वो वाला पार्ट को इनसेंसिटिव कर देता है। क्लियर है क्या? यस सर। सर फिर आपको दांत का कैसे पता चला? मुझे, सर मतलब आपका भी दांत खराब है ना? मेरा चकचक है, शार्प है, शाइनिंग है। दिख नहीं रहा है? फोटो में चमक रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा। Na+ इनफ्लक्स जानता हूं ना मैं। डिपोलराइजेशन में क्या होता है? सोडियम का इनफ्लक्स होता है। क्लियर है क्या? रिपोलराइजेशन में क्या होता है? अरे रिपोलराइजेशन में क्या होता है? पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। इफ्लक्स।
ई फ्लक्स का मतलब बाहर जाना, इन फ्लक्स का मतलब अंदर आना। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो क्या? अच्छा एक बात को मुझे जवाब दीजिए, अगर पूरे न्यूरॉन में माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होता तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन का क्या हिसाब रहता? ज्यादा हो जाता है उसका स्लो होता है। कंडक्शन। क्या बोल रहे हो? माइलिन Slow शीथ अगर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस हुआ तो व्हाट विल हैपन? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ज्यादा अच्छे से कंडक्शन होता है ना, वो हिप हॉप वाले मूवमेंट की वजह से। बड़ी सब देर बट कंटिन्यूस होता myelinated तो होता स्लो है। होता ना। होता ही नहीं। अच्छा सर, अब वो कंटिन्यूअस बोल रहे हो, मुझे लगा हर एक न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा ऐसा वाला। तो माइलिन का मतलब कंटिन्यूअस बोला ना, नोड ऑफ हुआ नहीं सर, फिर कंटिन्यूअस। स्लो स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, वही पॉइंट लिख लीजिए। इफ माइलिन शीथ, इफ सर मतलब नोड्स और एनवीए है ही नहीं ना बीच में, ऐसा बोल रहे थे आप। नहीं रहेगा वही कंटिन्यूअस का, वही। अरे कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना कुछ रहेगा ही नहीं, जो हाँ हमने लिखा है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इफ माइलिन शीथ इज continuous there will be no conduction, there will be no nerve impulse conduction, no nerve impulse conduction in a nerve fiber, in a nerve fiber। क्लियर है? रुको मैं तुम्हारा आलम फिर को कहता हूँ कि आपको उसने टी शर्ट चुरा लिया है। अरे हुआ क्या? आज हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सर अब ओरली पूछ सकते हो ना। तो टाइम लगेगा ना, 2 दिन क्वेश्चन तो पूछ लूंगा। जो अपने पास अलग अलग चैनल थे ना, एक था डिफ्यूजन वाला, एक था क्या बोलते हैं एनर्जी वाला, वोल्टेज गेटर वाला। अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन ऐसा चैनल है जो हमेशा खुली रहती है, मतलब अगर जरूरत पड़े तो खुलने, तो किस स्टेट में, मतलब कि इन एवरी स्टेट विच चैनल्स आर ओपन? डिफ्यूजन वाला या वोल्टेज गेटेड वाला? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। सवाल आपको पता होना चाहिए कि इन सिंपल डिफ्यूजन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन इन एवरी स्टेट। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि चैनल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, चैनल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो तो आप इससे क्या समझोगे? चैनल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए, इससे आप किस चैनल्स के बारे में समझोगे? गेटेड चैनल्स वाले वोल्टेज। पक्का? सिर्फ हाँ। तुम्हें ही समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर बराबर। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि क्लोजिंग ऑफ चैनल, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ चैनल्स की बात कर रहे, तो आप किसकी बात समझोगे, मतलब कौन सा चैनल के बारे में समझोगे? वोल्टेज गेटेड। गेटेड। ठीक है ना, VGC मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर ये कहा जाए कि ऐसा चैनल जो कि हर स्टेट में खुला होता है, तो डिफ्यूज। आज तक वाला चैनल तो नहीं ना? हाँ, तो आज तक को क्यों प्रमोट करते हो? सर कितने टीवी है, इंडिया टीवी है, जी न्यूज है। अरे तुम्हें नाम सामने वही है ना, मैं इसका लेने वाला था, क्या नाम उसका, अरे अभी जो पकड़ा गया था। गोस्वामी। हाँ हाँ, कौन स्वामी? गोस्वामी। हाँ, जो भी स्वामी नाम है उसका मैं लेने, अर्नब। अर्नब गोस्वामी, हाँ।
तनुश्री को नाम अच्छे से पता है, कोई लगता है क्या? सभी सूजल बोला। अच्छा, तुम्हारा कान बहुत तेज है। आगे बढ़ूं क्या मैं? अरे आगे बढ़ूं क्या? तो ये था आपके पास क्या क्या था? क्वेश्चंस। क्वेश्चन। साइनैप्स खत्म हुआ, अभी ब्रेन होगा।